Okay, we'll start with the new topic today. And please collect your mark sheet if you have not collected. On 13 is the date decided for SY BAF. So those who have not collected their mark sheet for semester 1, semester 2, semester 1 ATKT, they should go on the date mentioned and they should collect their mark sheet. No friends can collect on behalf of the other friend. Okay. If there is emergency, your family member can collect. Okay, means your mummy papa. Okay, that's it, because that much only we can verify. Nobody is going to verify for you. So if you have not collected. Those who have collected sem 2, they should collect sem 1 also. Okay, sem 1 80 kt also. So those who had kt in semester 1 and they those who have cleared it, they will have 3 mark sheet to collect. Okay, I hope there is no any question, any concern. We will start with the new chapter today, that is income from house property. And we are already aware that income from house property is rent income. Okay, this chapter is not that big. There are lesser concepts also. Okay, majority of the concepts will be covered in the first part only, that is gross annual value, and then net annual value will be covered simultaneously, and then we have deduction part. So I will share the screen for the format to be first. You learn what is income from house property, what is the basis of charge, who is chargeable. क्या लगता है आपको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट किसको मिलता है? किसको मिलता है? लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड या फिर ओनर, आप बोल सकते हैं उसको, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, है ना? ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी या लैंडलॉर्ड आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी जो है उसको क्या होगा इस केस में आपको चार्ज करना है। The owner of the house property is taxed on the income from the house property. Income from the house property is ascertained on the basis of annual value. And this is the unique head of income, guys. This is the unique head. ठीक है, ये वाला हेड जो है वो दूसरे हेड से जो है यूनिक इसीलिए है because here you will be charging on the basis of annual value, not on the basis of annual income. ठीक है, see income from house property में you have already learned that income is taxable, correct? यहाँ पर जो है even if it is not an income received, ठीक है, तो भी आप क्या करते हैं यहाँ पे इसको टैक्सेबल कर लेते हैं, इसलिए ये यूनिक हेड है। तो आप बोलेंगे रेंट रिसीव टैक्सेबल होगा, यस, ठीक है। समटाइम्स इफ रेंट इज नॉट रिसीव्ड तो भी यहाँ पे टैक्सेबिलिटी होती है। ठीक है, ओके, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, वेट। ओके, दिस इज द स्क्रीन। The basis of charge is the owner of the house property is taxed on the income from the house property. Income from the house property is ascertained on the basis of annual value. तो यहाँ पर we are not concerned about rent. ठीक है, we are concerned about annual value. हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली जो उसका रेंट पूरे ईयर में रिसीव होने वाला है, दैट विल बी एनुअल वैल्यू, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। It is not always true. Okay, according to section 22, the annual value of the property consisting of any building or land appertainant thereto. तो बिल्डिंग और बिल्डिंग के आसपास का लैंड, ठीक है, ये भी इसके अंदर कवर हो गया। ऑफ विच असेसी इज द ओनर, तो असेसी ओनर होना चाहिए, ठीक है, अदर देन सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ही में ऑक्यूपाई फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग नहीं देखने वाले हैं। इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम लोग उसको ले लेंगे, या बिजनेस का जो नोशनल पार्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट वी विल कैलकुलेट देयर ओनली। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होने वाली है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, दैट वी विल सी अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी दी हुई होती है तो स्ट्रेट अवे यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होती है वो। ठीक है। सच शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, टैक्सेबिलिटी यहाँ पे करना है। सर एनुअल वैल्यू क्या होती है वो बताओ, वो बताएंगे एकदम विस्तार में। ठीक है। वी हैव सो मेनी कॉन्सेप्ट्स टू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू, यही आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है। एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक के ये पढ़ने ही वाले हैं हर इसमें। ठीक है। देर आर सम कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। एक बार एनुअल वैल्यू हो गया तो मोर देन हाफ चैप्टर इज ओवर, देन आपका डिडक्शंस वाले आते हैं। ठीक है। सेम यहाँ पर भी कुछ डिडक्शन है, जैसे सैलरी में डिडक्शन थे, पीएफ का था, स्टैंडर्ड डिडक्शन था, एंटरटेनमेंट अलाउंस था, वैसे यहाँ पे भी आपको कुछ डिडक्शन आएंगे। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, वो वी विल सी। ये डेफिनेशन आप लोग ने यहाँ पे देख लिया। देखो बिल्डिंग डिफाइन किया है उन्होंने, फिर फॉलोइंग, ये सब आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं है। ठीक है। हाँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनुअल वैल्यू। ठीक है। एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका कैसा है? ठीक है। एनुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल रेंट। ठीक है। एनुअल रेंट विच इज आइदर रिसीव्ड और रिसीवेबल और एक्सपेक्टेड टू रिसीव और अंडरस्टूड टू बी रिसीव्ड। ठीक है। जो भी है, आप कोई भी टर्म से इसको ऑर्गेनाइज कर लो, ये सारी चीजें स्टेटमेंट ट्रू ही होगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिसीव्ड बेसिस पे ही कैलकुलेशन नहीं होता है। दिस इज द यूनिक हेड, मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको इनकम नहीं होगा तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, बट देर आर सिचुएशन, हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ सिचुएशन आपको होती है। ठीक है। सो एक मेन फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग करके भी देख लेंगे एक बार, बट यहाँ पे कहीं फॉर्मेट होगा, दिस इज दी फॉर्मेट, और इसमें से हर एक टर्मिनोलॉजी हम लोग को क्या करना है, दिस इज द मेन फॉर्मेट, दिस इज द मेन फॉर्मेट। आपको यही फॉर्मेट हमेशा बनाना है। ठीक है। और ये फॉर्मेट होता कैसे है, उसका भी एक एक टर्म हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सेम फॉर्मेट है, ऊपर भी आने वाली सारी चीजें इट इज गोइंग टू बी सेम। मैंने आपको बोला है पांचों हेड्स में थिंग्स आर गोइंग टू बी द सेम ओनली। अमाउंट अमाउंट का 2 कॉलम बना लेना है आपको। ठीक है। यहाँ पे लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इससे पहले हम लोग लिखते थे इनकम फ्रॉम सैलरी, वैसे इसके नीचे आपको एक हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बना लेना। ठीक है। वी विल कलेक्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। दिस वी विल अंडरस्टैंड। लेटर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, ये आपको पता है ऑलरेडी जो मैं लिखने वाला हूँ। म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो आपको मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स होता है वो लेस करने के बाद आपको मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी भी बोलते, एवी, इसको एनएवी भी बोला जाता है, और ऊपर वाले को जीएवी बोला जाता है। तो जीएवी से एनएवी तक के आने का रास्ता सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्सेस है, दिया है अगर क्वेश्चन में, तो आप म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करो, आपको एनएवी मिल जाएगा। तो मैंने ये टर्म आपको समझा दिया है कि एनएवी क्या है। सर जीएवी अब तक के समझ में नहीं आया, मैंने समझाया नहीं है आपको फिलहाल अब तक के कुछ भी। ठीक है। जीएवी से रिलेटेड दैट्स अ कॉन्सेप्ट, हो तो आपको आराम से पढ़ना है। ठीक है। यहाँ तक के हो जाने के बाद वी हैव डिडक्शन डायरेक्टली। कितनी अच्छी चीज है आपके लिए, है ना? डायरेक्ट क्या आ रहा है, डिडक्शन आ रहा है। ठीक है। डिडक्शन इसका है अंडर सेक्शन 24। सैलरी का क्या था? डिडक्शन डिडक्शन क्या था, मतलब कौन सा सेक्शन था उसका? 16 16। वेरी गुड। सैलरी का 16 था एंड हाउस प्रॉपर्टी का 24 है। ठीक है। एंड डिडक्शंस, बस ये 2 चैप्टर के आपको याद रखने, डिडक्शंस और
जो मेन डिडक्शन रहेगा वो, बाकी तो हर जगह पे आपको जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो इट इज प्री डिसाइडेड, that we will see, don't worry. Deduction under section 24 regarding standard deduction इसको भी मिलता है, but the calculation is different. Calculation is 30% of NAV. तो NAV ऊपर है, उसके ऊपर आपको क्या निकालना है, 30% निकालना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है, इट इज 30% ऑफ NAV। सैलरी का जो होता है 50,000 होता है मैक्सिमम, और आपका ग्रॉस इनकम विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से लोअर होता है वो हम लोग वहां पे लेते हैं। यहाँ पर इट इज 30% ऑफ NAV, ठीक है। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन taken for house property repair और कंस्ट्रक्शन और परचेस, जो भी परचेस, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर वगैरह के लिए जब आप लोन लेते हैं तो वो यहाँ पे आप डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज योर मेन फॉर्मेट, इतना ही आपको करना है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करके NAV मालूम करना है। डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन डायरेक्ट ले लेना है, क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं, 30% ऑफ NAV आता है हमेशा, ठीक है। और इंटरेस्ट भी आपके क्वेश्चन में मोर और लेस दिया होता है, नहीं दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज द मेन फॉर्मेट। अब इसमें से क्या नहीं समझाया है सर ने, सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी तक के समझाया नहीं है सर, ठीक है। और वही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टर्मिनोलॉजी भी सबसे पहले वही आने वाला है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इफ यू लुक एट द फॉर्मेट, उन्होंने अलग से कैलकुलेट किया है, हर बार वर्किंग नोट बनाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी वर्किंग नोट हियर। हम लोग जो भी फॉर्मेट है वो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग उसको करने वाले हैं। यहाँ से ये जो है वो पार्ट हटा देता हूं मैं, बिकॉज वी हैव नॉट कैलकुलेटेड येट, द आंसर विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो आपको उस हिसाब से देखना है, ठीक है। ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज फेयर रेंट, ये हमेशा एनुअल दिया होता है। सर क्या होता है समझाएंगे, डोंट वरी। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, ये भी हमेशा एनुअल दी हुई होती है क्वेश्चन में। मैंने ऐसे जनरली क्वेश्चन तो नहीं देखे हैं कभी कि जहाँ पे वो पर मंथ बेसिस पे ये सब चीज देते हैं, ये एनुअली देना पड़ता है उनको, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है वो भी देखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों का हायर लेते हैं, आपको मिलता है RLV, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, ठीक है। एक और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो कि हार्डली आता है एग्जाम में, बट फिर भी वो आपको देख लेना है, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। इन दोनों का हायर, ठीक है, और इसका लोअर, इन दोनों का हायर और इसका लोअर जो होता है, हायर ऑफ A एंड B, नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ C, और स्टैंडर्ड रेंट को मैं D नाम दे देता हूँ। आपको भी देना है तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नाउ ये दोनों का हायर यहाँ पर होगा, हायर ऑफ A एंड B यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, और ये दोनों का जो है लोअर आ जाता है,
लोअर ऑफ सी एंड डी। बस रीजनेबल लेटेबल वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे वंस अगेन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से, और आपको मिल जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज वंस अगेन हायर। अगर मैं इसको नाम ऐसे कंटिन्यू देने को स्टार्ट करूं तो दिस विल बी ई और दिस विल बी एफ। ये कोई नहीं, आप अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं, हायर ऑफ ई एंड एफ, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। ठीक है, ओके। ये दोनों का हायर, ये दोनों का लोअर, ये दोनों का हायर, हायर लोअर हायर, ऐसे याद रखना है। सर व्हाट इज फेयर रेंट? ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, फेयर रेंट क्या होता है? दी वर्ड फेयर का मतलब क्या होता है पहले बताओ, उससे समझेगा फेयर रेंट किसको बोलते हैं। बताओ फेयर का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल, वेरी गुड, सही है। दूसरा, बहुत सारे मीनिंग है ना फेयर के, राइट। रिलेटेड, राइट है, फेयर है, मतलब क्या बोलते हैं, एक्यूरेट आप बोल सकते हैं, राइट आप बोल सकते हैं। फिर अनीश ने क्या बोला, हाँ वैलिड आप बोल सकते हैं, करेक्ट ना। बहुत सारी चीजें आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें राइट है। ठीक है, राइट भी आंसर राइट है। तो फेयर रेंट होता क्या है? फेयर रेंट ऐसा रेंट होता है जो उस लोकेलिटी में मतलब चार्ज होता है, उसको आप फेयर रेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं अनिश आपके इधर पे नॉर्मली रेंट कितना होता है, तो आप बताएंगे कि सर ये अमाउंट है रेंट का। ठीक है, यहाँ पे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा यार 10,000 अराउंड। ठीक है, आपकी लोकेलिटी में आपको हमेशा पता है कि हर जगह का रेंट सेम होता है क्या? बताओ मुझे, हर जगह रेंट सेम है? नो सर। 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 है ना, हम लोग ही जितने लोग यहाँ पर है, हर जगह पे लोकेशन में रेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, सो जो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में चार्ज होता है उसको हम लोग फेयर रेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फेयर रेंट का मतलब? तो हर लोकेलिटी में अलग अलग रेंट चार्ज होता है, तो जो आपके लोकेलिटी में मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेटेड है उस प्रॉपर्टी में, उस नियर बाय एरिया में जो रेंट चार्ज होता है उसको फेयर रेंट बोलते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू यूज होती है म्युनिसिपल टैक्सेस कैलकुलेट करने के लिए। जब आपसे म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस लेती है ना, आपके जो रूम हाउसेस जो है उसका टैक्स होता है, म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो कैलकुलेट होता है टैक्स, वो आपकी एनुअल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी म्युनिसिपैलिटी के पास है। ठीक है, जिसकी बेसिस पे आपका रेंट डिसाइड होता है। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू जो होती है, म्युनिसिपैलिटी रेट करती है, रेटेबल वैल्यू होती है म्युनिसिपल की। ठीक है, तो एक वैल्यू उनके पास होगी, वो जो वैल्यू है वहां की, उसको आप म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आप इन दोनों का हायर ले लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो स्टैंडर्ड रेंट एक्ट के थ्रू आता है, ताकि लोग ज्यादा रेंट ना चार्ज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन्ड है। स्टैंडर्ड रेंट मुझे दिखा नहीं, दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। Income from house property determined on the basis of annual value. It is annual value of the house property which is charged to the tax. ठीक है, तो मुझे फेयर रेंट, म्युनिसिपल, रीजनेबल, अच्छा, सो मैं ये वाला तो हटा देता हूँ फिर, बेटर। बेटा ये छोड़ दो, ये कॉन्सेप्ट को, आप फायदे में रहेंगे। तो ये और ज्यादा सिंपल हो जाता है। वैसे भी वो कभी आता नहीं था, लेकिन अभी शायद सिलेबस से भी निकाल दिया है, तो और चीज अच्छी हो गई। लास्ट ईयर तक के था, बट अब नहीं है, और ये आपके लिए बेनिफिट ही है। चलो भैया, बेनिफिट क्या है, यहाँ पे कोई लोअर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इन दोनों का हायर ले लिया, आरएल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हायर ऑफ ए एंड बी, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। आई होप दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। फेयर रेंट का मतलब जो उस लोकेलिटी में जनरली चार्ज होता है, जो फेयर है उस लोकेलिटी के हिसाब से, वो होगा। और म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है आपकी म्युनिसिपैलिटी ने आपके हाउस के लिए कुछ तो भी वैल्यू डिसाइड किया होगा कि आपके हाउस की वैल्यू क्या है,
तो आपका म्युनिसिपल वैल्यू होता है, म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू भी बोलते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी आता है कई बार क्वेश्चन में। तो जब आप इन दोनों का हायर ले लेते हैं तो उसको रीजनेबल लेटेबल वैल्यू बोलते हैं। रीजनेबल लेटेबल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो आपकी प्रॉपर्टी की होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों का हायर लेते हैं। दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। नाउ उसको कंपेयर किससे करना है, आपको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है, और एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे वंस अगेन आपको हायर लेना है, तो इसका भी हायर, इसका भी हायर, ठीक है। अल्टीमेटली ये तीनों चीजों का हायर जो होगा वो आपका क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तीनों चीज मतलब फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट, ये सब का जो हायर होगा। एक्चुअल रेंट तो बताने की जरूरत नहीं, जो एक्चुअली आपके प्रॉपर्टी का रेंट है। आपको पता है डिफरेंस बिटवीन फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट क्या होगा। फेयर रेंट मतलब वो जो लोकेलिटी में चार्ज होता है उसको फेयर रेंट बोलेंगे। एक्चुअल रेंट मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट आपने लिया है, तो आपकी लोकेलिटी में 6,000 होगा और आपने 5,000 लिया है, तो वो एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लोकेलिटी में रेंट जो है वो 20,000 होना चाहिए और आप बता रहे हो कि मैं 5,000 कलेक्ट करता हूँ टेनेंट से, आपको टैक्स 10,000 पे पे करना है, 20,000 पे पे करना है, ठीक है। तो आप कम पे टैक्स नहीं पे कर सकते, आपको ज्यादा पे करना है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं आपको पता है, आप तो कुछ भी बता दोगे कि आपने कितना रेंट लिया है ना। तो रेंट तो आप कुछ भी बता दोगे, 5,000 रेंट है, 2,000 रेंट है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी चेक करेंगे कि वहां का फेयर रेंट क्या है, ठीक है। अगर फेयर रेंट ज्यादा है तो वही ले लेना है। म्युनिसिपलिटी ने आपका वैल्यूएशन ज्यादा किया है तो वही रेंट ले लेना है, ठीक है, जो भी है। तो आपके रेंट की जो एनुअल वैल्यू है वो फेयर रेंट के हिसाब से, म्युनिसिपल वैल्यू के हिसाब से, एक्चुअल रेंट के हिसाब से जो भी हायर है वही आपको यहाँ पे ले लेना होता है। कोई टर्म नहीं समझ में आया तो आप पूछो, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। फेयर रेंट दिया होता है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया होता है, एक्चुअल रेंट दिया होता है, ठीक है। सो खाली एक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है और वो मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन भी, ठीक है। एक्चुअल रेंट जो है कभी कभी कम आता है, ठीक है। एक्चुअल रेंट कभी भी कम हो सकता है, एंड दैट मे बी द रीजन ऑफ वेकेंसी, ठीक है। वेकेंसी का मतलब क्या होता है, आपका टेनेंट आपके रूम में नहीं रह रहा है, तो उस वक्त वो या तो एक टेनेंट के जाने के बाद दूसरे टेनेंट के आने से पहले, ठीक है, क्या हो जाता है, वेकेंसी रह जाती है। वेकेंसी रह जाती है मतलब आपका जो रूम है वो वेकेंट रह जाता है और उसका तो रेंट आपको नहीं मिलता। तो समटाइम्स क्या होता है, एक्चुअल रेंट इज लोअर बिकॉज ऑफ वेकेंसी, ठीक है। और इस वजह से हम लोग ओनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते हैं कि ओनर ने जो है वो प्रॉपर्टी का रेंट नहीं लिया है या कम चार्ज किया है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको क्या लगता है कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, बताओ। क्यों हम लोग जो रेंट के ऊपर टैक्स नहीं ले सकते, रीजन बताओ, एक रीजन बताओ कि आप एक्चुअल रेंट के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लेते हो, आप फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर क्यों कर रहे हो यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। जबकि इनकम के ऊपर आप टैक्स ले सकते हैं, बट फेयर रेंट कंपेयर कर रहे हैं आप, म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, गिव मी वन रीजन। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसे कर रही है गवर्नमेंट, एक्चुअल रेंट पे क्यों Because नहीं। anyone can see lie that he हाँ The municipal हाँ, corporation provide facilities. ठीक है। आप तो झूठ भी बोल सकते हो ना कि एक्चुअल रेंट कम है करके, बराबर है ना। एक्चुअल रेंट कम है करके आप झूठ भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं है, या फिर रेंट पे थी ही नहीं, या रेंट पे सच में नहीं थी आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो उस केसेस में आप किस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करेंगे, आप बोलेंगे सर हम लोग जो रूम में पे कर रह रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स पे करना नहीं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी को छोड़कर, असेसी की एक प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सबके ऊपर उसको टैक्स पे करना है, चाहे वो रेंट पे है या नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली उसको जो मिनिमम लिमिट होती है, जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है वो अप्लाई होती है, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट आप देखेंगे तो उसको टैक्स तो वैसे भी पे करना है अगर उसकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो, अगर वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का ओनर है तो, ठीक है, एक प्रॉपर्टी को छोड़कर। तो आप बोलेंगे जब रेंट लिया ही नहीं है तो टैक्स किसके ऊपर पे करेंगे, एनुअल रेंट जो आपका फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू का हायर होगा उसके ऊपर पे करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पे करना है, तो ये इसीलिए तो ये यूनिक हेड है। आपने इनकम अर्न नहीं किया, सर मेरी 3 प्रॉपर्टी थी, मैंने तीनों प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दिया है, मत दो, आपको लेना देना नहीं है रेंट पे देने से कुछ भी, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, आपकी बाकी की 2 प्रॉपर्टी पे टैक्स लेगी।
कैसे डिसाइड करेंगे कि किस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, वो आप डिसाइड करो। आप तीन में से एक को एसओपी डिक्लेयर कर लो, नहीं रहते हो तो भी डिक्लेयर कर दो एसओपी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे आपको कोई पूछा नहीं जाएगा कि आप यहाँ पे रह रहे हो, आप उसको एसओपी डिक्लेयर कर रहे हो, आप उसको एसओपी डिक्लेयर कर रहे हो। एसओपी क्या होता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब मैंने खुद ने ऑक्यूपाई किया उसको, ऐसा आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे ही आप एसओपी डिक्लेयर करते हो, ठीक है, वैसे बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी मान ली जाती है। ठीक है, डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। डीम टू बी का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट एक्चुअली लेट आउट। डीम टू बी मतलब हमने उसको डिक्लेयर कर दिया कि बाबा ये लेट आउट है करके। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के भी कुछ टाइप होते हैं। वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी का मतलब तो आपको पता है, जिसमें कोई रह ना रहा हो, वेकेंसी हो गई है, एक टेनेंट गया है, दूसरा टेनेंट आने में टाइम है, तो वेकेंसी हो जाती है, तो वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल होता है, मैं उसमें रह रहा हूँ। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पे भी टैक्स पे करना है। हाँ, टैक्स क्लेम मतलब बेनिफिट क्लेम करते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं सिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद है आपका लेट आउट प्रॉपर्टी, तो आपको पता है लेट आउट का मतलब क्या होता है। आवाज आ रही है क्या? इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ है। हेलो हेलो। यस सर सर। ब्रेक हो रही है बहुत। हाँ हाँ, क्योंकि अभी अनस्टेबल हुआ था। आई थिंक इट इज प्रॉपर नाउ। अगर जारी है तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा समझेगा कि आ रही है आवाज और आ नहीं रही होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो एक है आपका एसओपी, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब उसमें आप रह रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपने खुद ने सेल्फ ने ऑक्यूपाइड किया है। ठीक है, लेट आउट, लेट आउट का मतलब होता है जो आपने रेंट पर दिया है उसको लेट आउट बोलते हैं। वेकेंट, जिसमें कोई नहीं रहता, मतलब जो वेकेंट रह जाती है तो उसको आप वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। लास्ट वन इज डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है, आपने एक को एसओपी डिक्लेयर कर दिया, बाकी सबको लेट आउट हम लोग मान लेंगे। मान लेंगे का मतलब डीम टू बी। ठीक है, डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चार तरह की हाउस प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होती है, ये भी मैंने आज आपको बता दिया। ऑल्दो साइड बाय साइड हम लोगों ने कवर कर लिया, बिकॉज मैंने एसओपी नाम ले लिया था बीच में, और उसके हिसाब से हम लोग का कैलकुलेशन आगे आगे डिफरेंट होता है, वो अलग बात है। मेन फॉर्मेट यही है, मतलब मैक्सिमम फॉर्मेट आपका यही आपको यूज करना है। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, आपको उसका हायर लेना है, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है, हायर लेना है। मैं आपको ये बता रहा था कि एक्चुअल रेंट लोअर हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने के लिए टेनेंट नहीं था, ठीक है, तो आपको 10 महीने का रेंट मिला है, या तो आपको कुछ महीने का रेंट नहीं मिला है। ठीक है, एक्चुअल रेंट आपका लोअर हो सकता है बिकॉज ऑफ वेकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि नॉर्मल रूल क्या अप्लाई होता है? हायर हायर, है ना, हायर ऑफ एफआर एंड एमवी, दैट इज फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू। फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, फिर हायर लेते हैं, बराबर ना, यही आपका नॉर्मल रूल है। लेकिन अगर यहाँ पे वेकेंसी है, ठीक है, अगर यहाँ पे वेकेंसी है तो यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हायर हायर यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? हायर और लोअर, मतलब यहाँ पे लोअर वाला फॉर्मूला लग जाएगा तब, अगर यहाँ पे क्या है? वेकेंसी है। क्यों ऐसे सर? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एग्जांपल ही देने का टाइम है, क्वेश्चन करने का टाइम ज्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, तो एग्जांपल तो ले ही लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी पे फेयर रेंट जो है 1,20,000 है, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसका वहां का रेंट जो है 10,000 है पर मंथ, तो एनुअली कितना हो जाएगा उसका? 1,20,000 होगा। ठीक है, और म्युनिसिपैलिटी ने आपकी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू रखा है 150,000, तो आरएलवी क्या आएगा आपका? आरएलवी क्या आएगा? बोलो, क्या होता है आरएलवी? दोनों का हायर, तो कितना होगा? 1,15,000। 1,50,000 हो जाएगा, बराबर। दोनों का हायर जो होगा आपका आरएलवी होगा। ठीक है, और एक्चुअल रेंट जो है वो आपका कितना है? 1,60,000 आपने लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल रेंट तो लोअर है ही नहीं पहली बात, तो आंसर क्या होगा आपका? 1,60,000, बराबर ना। हायर हायर, हायर सिलेक्ट किया, फिर रेंट रिसिप्ट से कंपेयर किया और उसमें से भी हायर आपने ले लिया। ये नॉर्मल जिंदगी है आपकी,
नाउ मेंटोस वाली जिंदगी कौन सी है? ठीक है, आपने जो है रीजनेबल लेटेबल वैल्यू आपकी 1,50,000 है और आपने रेंट जो कलेक्ट किया है, आप बोलते हो कि मैंने 1,40,000 कलेक्ट किया है। बोलो गवर्नमेंट कितने पे टैक्स लेगी, 1,50,000 पे या 1,40,000 पे? 1,50,000। 1,50,000 हायर ही लेना है ना, लोअर पे तो नहीं ले सकती गवर्नमेंट टैक्स। ठीक है, आप बोलेंगे सर मैंने 1,40,000 ही रेंट लिया है, मान लो बात, बोलेगा नहीं, आपको लेना कितना चाहिए था, रीजनेबल क्या है, रीजनेबल इज 1,50,000, आपने 1,40,000 क्यों लिया? ठीक है, जरूर आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो हमने झूठ पकड़ लिया है, इसीलिए आपको टैक्स कितने पे पे करना है, 1,50,000 पे करना है। सर बट एक्चुअली मैंने 1,40,000 ही लिया है। नहीं, आपके पास कुछ वैलिड रीजन है 1,40,000 होने का? हाँ मेरे पास एक वैलिड रीजन है, सर वैकेंसी हो गई थी। वैकेंसी हो गई थी मतलब मेरी गलती नहीं है सर, 2 महीने तक तो टेनेंट था ही नहीं मेरे रूम में, है ना? तब यहाँ पर ये जेन्युइन रीजन माना जाता है कि वैकेंसी हो गई थी, मतलब बीच में टेनेंट होता है, एक टेनेंट जाने के बाद दूसरे टेनेंट आने में कभी कभी टाइम हो जाता है, तो वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, अब उसका रीजन जो है वैलिड हो गया। अब बोलो वैकेंसी थी बेटा, आप कितने पे टैक्स लेंगे? रीजन उसका वैलिड है, 1,40,000 लेंगे। समझा क्या? यस सर। तो जनरली जो है आपकी जो ऑर्डिनरी लाइफ जो है वो यही है कि आपको हायर ही लेना है। मेंटोस वाली लाइफ क्या है आपकी, कि आपको वैकेंसी है तो आपको रेंट लोअर है तो आप लोअर ले सकते हैं, रेंट इज लोअर बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो आप ले सकते हैं, दैट इज अ वैलिड रीजन। फिर आप उसको ज्यादा पे टैक्स पे करने कैसे बोल सकते हैं, बेचारा ऑलरेडी लॉस पे है, उसको 2 महीने तक के टेनेंट नहीं था, 3 महीने तक के टेनेंट नहीं था, उसको रेंट ही नहीं आया, तो आप उससे टैक्स भी कलेक्ट करेंगे, ये तो गलत बात है। ठीक है, एंड आप अगर फाइंड आउट कर पाते हैं कि इसमें उसकी गलती नहीं है, तो आप उसको, और एक ही चीज यहाँ पे एक ही वैलिड रीजन हो सकता है, एक्चुअल रेंट इज लोअर बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो ही आप एक्चुअल रेंट लेंगे, अदरवाइज नहीं। हर बार आपको क्या करना होता है, एंड दैट इज एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन मतलब वहां पे वैकेंसी होना चाहिए, तब जाके आप क्या करेंगे, ये चीज करने वाले, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके, इधर समझ में आ गया। और म्युनिसिपल टैक्सेस भी आपके क्वेश्चन में दिया होता है, तो आपको वहां से क्या करना है, उसको फाइंड आउट कर लेना है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में आपके अवेलेबल होता है। एक और एक चीज, यू विल हैव सो मेनी थिंग्स इन दी इन योर क्वेश्चन पेपर। सो मेनी थिंग्स मतलब आपको आपकी प्रॉपर्टी का रिपेयर दिया होगा, आपको आपकी प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं, चार्जेस दिया हो सकता है, उसका लैंड रेवेन्यू दिया हो सकता है, उसका बहुत सारे एक्सपेंस, इंश्योरेंस हो सकते हैं, उसका कलेक्शन चार्जेस हो सकते हैं, हो सकता है ना, एक प्रॉपर्टी के ऊपर काफी सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन में आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी सारे एक्सपेंसेस दिए हुए होते हैं, सब इग्नोर करना है, सब इग्नोर करना है, बिलीव मी। ठीक है, आप फॉर्मेट को जितना फॉलो करेंगे आपकी जिंदगी उतनी ही सिंपल रहेगी। ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन फॉर्मेट और क्वेश्चन को आप रीड करने को ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर्मेट इज सिंपल। ठीक है, और उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में काफी सारी चीजें रहती हैं, हम लोग को क्वेश्चन में से वही चीज लेना है जो मेरे फॉर्मेट के लिए सुटेबल है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉजिक फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कई जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल रेंट के ऊपर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग नोशनल जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उस बेसिस पे भी हम लोग रेंट कलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से सिर्फ किससे मतलब है, टैक्स कलेक्ट करने से मतलब है, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स हम लोग को क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग हायर 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 जो है वो लेते हैं। ठीक है, ओके, कुछ समझ में आया है आपको, कुछ क्वेश्चन है सो पूछना है? अटेंडेंस लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, एंड नाउ दिस इज टाइम टू डिस्कस। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। ठीक है, व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इट इज रेंट। ठीक है, बट ये यूनिक हेड है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ रेंट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, वी विल ऑल्सो कंपेयर फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, सो हायर ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट इट एज RLV, सॉरी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया होता है, आपको सिर्फ माइनस कर देना है उसको।
ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए कुछ रूल है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जब म्युनिसिपल टैक्सेस पे जाएंगे। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग को जीएवी और एनएवी के ऊपर डिस्कशन करना है। डिडक्शंस के लिए हम लोग एक अलग से सेशन रखेंगे डिडक्शंस, और उसके बाद डिडक्शन पे जाएंगे, और डिडक्शन जो होता है लेटर का पार्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा भी क्वेश्चन में काफी सारी चीजें दी होती जो आपको बहुत ज्यादा टाइम इग्नोर ही करना होता है। दिया होता है कई बार, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा होता है, बट क्वेश्चन डजंट हैव एनी वैल्यू। आपकी चीजों को आपको खाली आपको देखना है कि मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है, उतनी ही आपको ले लें, दैट्स इट। तो जितना आप क्वेश्चन को फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको सिंपल रहेगा ये चीज। ठीक है। और समझने का यहाँ पे ज्यादा लॉजिक नहीं है। अगर उसने प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस प्रीमियम लिया भी है तो हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। सारे एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे एक डिडक्शन मिलती है जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में भी बताया था। एक जगह आई थी जहाँ पे पूछा हुआ था कि एक प्रोफेसर ने अपने कुछ एक्सपेंसेस किया है, जैसे पढ़ाने के लिए उसने बुक खरीदा होगा, ठीक है, या ऐसा कुछ। सर प्लीज सेंड दी फॉर्मेट इन दी ग्रुप। बेटा मुझे पूरा थ्योरी के साथ भेजना पड़ेगा, बट दी ओनली थिंग इज कि टुडे इट इज नॉट रेडी। ठीक है। मैं आपको भेजूंगा। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं एक उसको डॉक में कन्वर्ट कर दूं, और उसी में क्वेश्चन, और उसी में जब उसका आंसर आता है ना, सो आई विल नॉट शेयर इट थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में उसकी लिमिट है, उसके बाद वो वेव ऑफ हो जा वो फेड हो जाता है, उसके बाद वो दिखता भी नहीं है उसके बाद। ठीक है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग, मैं एक डॉक आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है। शायद गूगल क्लासरूम पे ही आप जाके वहां से डेली जो जो होता है उसके नीचे नीचे मैं पेस्ट करते जाऊंगा। ठीक है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। आप अपना नोट्स जो है वो वहीं पे आप देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है। सो आई विल कीप इट देयर ओनली। और डॉक में करना थोड़ा सा रिस्की इसीलिए है क्योंकि कोई ओपन करेगा तो वो एडिट कर पाएगा। अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेट्स सी कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी व्हाट्सएप पे नोट्स फॉरवर्ड करना तो नहीं है। गूगल क्लासरूम पे बहुत सारी नोट्स फॉरवर्ड करने का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब डेली डेली अगर मैं उसके आंसर्स पेस्ट करूं वहां पे, तो वो भी कोई लॉजिक नहीं है। मैं कर सकता हूँ बट वो खाली डम करने के बराबर हो जाएगा। तो पर चैप्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिंक क्रिएट करके रख सकते हैं वहां पे, और आपको जब भी चाहिए तो आप जाके वो विजिट करके देख सकते हो। दैट इज द बेस्ट वे आई थिंक। ठीक है। आपका नोट्स भी अपने पास रह जाएगा आपके पास, और वो एक ही नोट्स होना चाहिए। मतलब डेली डेली जाके सिर्फ उसमें अपन को एडिटिंग करना चाहिए कि जितना ऐड होता जा रहा है, क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो हम लोग को सिर्फ वहां पे जाके डाल देना है। ठीक है। ये भी करेंगे तो अपना काम क्या होगा, ईजी हो जाएगा इसमें। ठीक है। और अगर मैं इसको डॉक में रखता हूँ तो कोई बच्चा भी इसको एडिट कर सकता है, तो ये रिस्क भी है। ठीक है। तो देखता हूँ मैं कैसे उसको क्या करना है, बट नोट्स तो आपको पूरी प्रोवाइड करके देना है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपने पास ही, मतलब मेरे पास जो पर्सनल डॉक्यूमेंट रखूं, लेकिन मेरे लेक्चर लेने के लिए एक कोई सोर्स नहीं है मेरा खुद का। मेरे पास लैपटॉप है तो फिर वो भी कभी रहता है नहीं रहता, तो मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है, तो दोनों जगह हो जाएगा। तो आई थिंक द पेन ड्राइव इज द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे हम लोग एडिट करके रख सकते हैं, और डेली बेसिस पे वो जो है उसको वहां पर अपन डाल सकते हैं। डेली बेसिस पे उसको अपलोड कर सकते हैं। एज उधर पे ऑप्शन है शायद, रोजलिन मैम बता रहे थे, शायद शी इज फॉलोइंग लाइक दैट ओनली। तो मैं थोड़ा सा वैसे करके देखता हूँ। यू विल हैव योर प्रॉपर नोट्स, और उसके अंदर शायद हम लोग क्वेश्चन और आंसर भी उसके अंदर डाल पाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है। तो एक प्रॉपर आपकी नोट्स बन जाएगी। ठीक है। सो लेट मी वर्क ऑन दैट, और मैं आपको बताता हूँ। आज के लिए हम लोगों ने सिर्फ ओवरव्यू ही देखा है, इधर पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, कोई नोट्स हम लोगों ने रिफर नहीं किया है जनरली देखें तो। ठीक है। थ्योरी पार्ट के लिए आपको सिर्फ नोट्स रिफर करना है। इसमें से थ्योरी आता है एग्जाम में। ठीक है। काफी सारा थ्योरी है इसमें से आता है, रिलेटेड टू योर एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू